ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இன்று சபலா ஏகாதசி. இந்த ஏகாதசியின் பெருமைகளை பற்றி பத்ம புராணத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் மகாராஜா யுதிஷ்டருக்கும் இடையிலான உரையாடலில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. சபலா என்ற சொல்லுக்கு வெற்றி என்று பொருள். இந்த சபலா ஏகாதசி விரதம் அனுஷ்டிப்பவர்கள் மற்றும் இந்த விரத கதையை கேட்பவர்களுக்கும் மகாவிஷ்ணுவின் அருளால் வெற்றி, செழிப்பு மற்றும் நல்ல அதிர்ஷ்டம் ஆகியவை கிடைக்கும் மற்றும் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் மனோ பலத்தையும் பெறுவார்கள். இந்த விரதத்தை அனுஷ்டிப்பதால் ஒருவர் இந்த பிறவியில் புகழ் அடைந்து அடுத்த பிறவியில் முக்தியை அடைவார்கள் மற்றும் அஸ்வமேதம் செய்த பலனை பெறுவார்கள். விரதம் இருப்போர் இல்லாதோர் அனைவருமே பகவான் விஷ்ணுவை வேண்டி இன்று பலவிதமான பழங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். தீபத்தை தானமாக கொடுப்பது சிறந்தது. இன்று இந்த விரத மகிமையை யார் சொல்கிறார்களோ கேட்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ராஜசூயம் என்ற யஜ்ஞம் செய்த பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம பதிவுக்குள்ள போகலாம். மகாராஜா யுதிஷ்டர் கேட்கிறார், ஓ கிருஷ்ணா, இந்த பௌஷ மாசம் கிருஷ்ண பக்ஷ ஏகாதசிக்கு பேர் என்ன, அதன் மகிமை என்ன, அதை எப்படி அனுஷ்டிக்கணும்ன்றத எனக்கு விவரமாக சொல்லுங்கன்னு சொல்றார். பகவான் கிருஷ்ணர் பதில் அளிக்கிறார், பரத வம்சத்தில் சிறந்தோனே, பாம்புகளின் ஆதிசேஷன் எப்படி சிறந்ததோ, பறவைகள்ல கருடன் எப்படி சிறந்ததோ, யாகங்களில் எவ்வாறு அஸ்வமேத யாகம் சிறந்ததோ, ஆறுகளில் கங்கை எப்படி சிறந்ததோ, அனைத்து தேவர்களிலும் விஷ்ணு எவ்வாறு சிறந்தவரோ மற்றும் மனிதர்கள்ல அந்தணர்கள் எவ்வாறு சிறந்தவர்களோ அவ்வாறு அனைத்து விரதங்களையும் ஏகாதசி விரதம் மிக மிக சிறந்தது. ஓ மன்னர்களில் சிறந்தோனே, யார் ஒருவர் இந்த ஏகாதசியை அனுஷ்டிக்கிறார்களோ, இந்த விரத மகிமையை கேட்கிறார்களோ, அவர் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர். 5000 ஆண்டுகள் தவம் மேற்கொள்வதால் அடையும் புண்ணிய பலனை ஒருவர் இந்த ஏகாதசி விரதத்தை அனுஷ்டிப்பதாலும் இந்த விரத மகிமையை கேட்பதாலும் அடைவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரத மகிமையை சொல்றார். முன்னொரு காலத்துல மகிஷ்மதான்ற ஒரு புகழ்பெற்ற மன்னர் சம்பவதி என்ற நகரத்துல வாழ்ந்து வந்தார். அவருக்கு 4 மகன்கள். அவர்கள மூத்த மகன் லும்பகன் பெரும் பாவி. தந்தையின் பெரும்பாலான செல்வத்தை மது, மங்கை என்ற ஆசைக்காகவே செலவு செய்தான் லும்பகன். அதனால மன்னர் மனம் நொந்தார். வேற வழி இல்லாம மகிஷ்மதா மன்னர் அவனை நாட்டை விட்டு வெளியேற்றி விடுகிறார். வெளியேற்றப்பட்ட லும்பகா காட்டுல போய் வாழ்ந்து வந்தான். அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த லும்பகன் பக்கத்துல உள்ள நகரத்துல போய் திருட தொடங்குறான். ஒரு நாள் அவனை பிடிச்சு எல்லாரும் கடுமையா தாக்குறா, அடிக்கிறா. என்ன அடிக்காதீங்கோ, நான் பக்கத்து நாட்டு மகிஷ்மதா மன்னனுடைய மகன், நான், என் பெயர் லும்பகன் அப்படின்னு சொல்லி கதறி அழறான். அதனால அவன் அரசன் மகன்றதுனால அவன் மேல கருணை கொண்டு எல்லாரும் லும்பகனை விட்டுட்டு போயிடுறா. அடிப்பட்ட லும்பகன் அப்பதான் திருந்துறான். நல்லவேளை நம்ம ராஜா பையன் அரசன் மகன்றதுனால விட்டுட்டா, இல்லைன்னா நம்மளை கொண்டிருப்பார்கள், இனிமே நம்ம திருடக்கூடாதுன்னு சொல்லி தீர்மானம் பண்றான். மனம் திருந்தின லும்பகன் அங்க இருக்கிற மரத்தடியிலேயே வசிச்சுட்டு இருக்கான். காட்டுல கிடைக்கிற கனிகள், கிழங்குகள்லாம் உணவாக எடுத்துக்கிறான். அடுத்தவர்களை கஷ்டப்படுத்தி வாழ்ந்து வந்தவனுக்கு இந்த உணவு போதுமா இல்ல. அதனால உடம்பு ரொம்ப மெலிய தொடங்கியது. குளிர்காலம் வருது. ஒரு நாள் லும்பகனுக்கு எதுவுமே கிடைக்கல, சாப்பிட்றதுக்கும் கிடைக்கல. சாயங்கால நேரமும் வந்துடுறது. அலைந்து திருந்தும் ஒரு சில பழங்கள் தான் கிடைச்சது. மரத்தடிக்கு திரும்பின லும்பகன் ராத்திரி முழுவதும் குளிராலும் பசியாலையும் வாடினான். தூக்கம் வரல, போர்த்திக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்ல, சாப்பிட எதுவும் இல்ல. இப்படி இருக்கிறப்போ கிடைச்ச ஒரு சில பழங்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றான். அவன் மனசு மாறிட்டான் இல்லையா, அதனால பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றான். இப்படியே அந்த நாள் முழுக்க முடிஞ்சு போயிடுறது. பொழுது விடிஞ்சிடுறது. அப்போ ஆகாயத்துல இருந்து ஒரு அசரீரி கேட்கிறது, லும்பகா, நேற்று சபலா ஏகாதசி, நீ தங்கி இருந்தது ஒரு அரச மரத்தடியில. அன்ற ராத்திரி முழுவதும் நீ தூங்கல, கிடைச்ச பழங்களையும் பசியோடு இருந்தும் நீ சாப்பிடல, பகவானுக்கே நீ அர்ப்பணம் செய்து விட்டாய். உன்னுடைய பாபங்கள்லாம் அடியோட அனைத்தும் அழிந்து போனது. காட்டை விட்டுட்டு நீ நாட்டுக்கு திரும்பலாம். அரச பதவி உனக்காக காத்துருக்கு அப்படின்னு அந்த அசரீரி சொல்றது. அசரீரி சொன்னது போலவே லும்பகனுக்கு எதிரில் அவன் நாட்டை சேர்ந்த அமைச்சர்கள்லாம் பட்டத்து யானையில வரா. மன்னர் மறைந்து விட்டார், அதனால தாங்கள் தான் இந்த நாட்டை ஆளணும்னு சொல்லி வேண்டி லும்பகனை பட்டத்து யானை மேல ஏற்றிக்கொண்டு அழைச்சின் போய் பட்டாபிஷேகம் நடத்தி வைத்தார்கள். நல்ல முறையில லும்பகனும் நாட்டை நிர்வாகம் செய்து எதிர்காலத்துல தனது பிள்ளைகளிடம் நாட்டை ஒப்படைச்சிட்டு வைகுண்டம் அடைந்தான். இந்த சபலான்ற சொல்லுக்கு வெற்றி என்ற பொருள். இந்த சபலா ஏகாதசி விரதம் அனுஷ்டிப்பவர்கள் மற்றும் இந்த விரத கதை கேட்பவர்கள் விஷ்ணுவின் அருளால் வெற்றி, செழிப்பு, நல்ல அதிர்ஷ்டம் ஆகியவை அவர்களுக்கு கிடைத்திடும். நல்ல ஆரோக்கியம், மனோ பலத்தையும் பெறுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த விரதத்தை அனுஷ்டிப்பதால் இப்பிறவியில்
புகழடைந்து அடுத்த பிறவியில் முக்தி அடைவார்கள் மற்றும் அவருக்கு அஸ்வமேத யாகம் செய்த பலன் கிடைக்கும். விரதம் இருப்போர் இல்லாதோர் அனைவருமே இன்று மகாவிஷ்ணுவை வேண்டி பலவிதமான பழங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். தீபத்தை தானமாக கொடுத்தல் சிறந்தது. இந்த பழங்களையும் தீபத்தையும் தானம் செய்வதால் ஒளிமயமான வாழ்க்கை அமையும், இல்லறம் இனிக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்று இந்த விரத கதையை யார் சொல்கிறார்களோ கேட்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ராஜசூயம் என்ற யஜ்ஞம் செய்த பலன் கிடைக்கும். இந்த சபலா ஏகாதசி நாளில் பகவான் விஷ்ணுவை வழிபட்டு கீதையின் 11வது அத்தியாயத்தை படிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதனால் அவர்களுக்கு அனைத்து நற்பலன்களும் கிடைக்கும். அவர்கள் இழந்த செல்வம் விரைவில் அவர்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும். பொருளாதார நிலை மேம்படும். ஆரோக்கிய குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு நோய் தீர்ந்து அவர்களது உடல் நலம் மேம்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நமக்கு இது மார்கசீர்ஷ மாதம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் உத்தர பாரதத்தில் பௌஷ மாசம் ஆரம்பித்துவிடும். அதை ஒட்டியே இந்த ஏகாதசி வரும். அதனால் இன்றைய ஏகாதசிக்கு சபலா ஏகாதசி என்று பெயர். இந்த கிருஷ்ண பட்சத்தில் மட்டும் இந்த ஏகாதசியில் மாறுபாடு வரும். சந்தேகம் சிலருக்கு குழப்பம் வரலாம். அதுக்காக தான் இது சொல்லப்படுறது. இந்த தினத்தில் நாம் பகவத்கீதை தியான ஸ்லோகம் அத்தியாயம் 11 சமாப்த ஸ்லோகங்கள் மங்கள ஸ்லோகங்கள் பாராயணம் செய்து பலன் பெறுவோம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமக. பகவத்கீதா தியான ஸ்லோகாஸ். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமக. ஓம் பார்த்தாய प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतत् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोत्तसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्तं जगत्
जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समुन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यतितास्तताहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यतितान्तरात्मा धृतिन्न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमाणः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलन्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोतवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीया न त्वत्समोऽस्ति अभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके
हि द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम 11ोऽध्यायः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।